Hello everyone, how are you? I hope you are all doing well. So in today's lecture, we are going to study when an AC voltage is applied to an capacitor. Okay, and we are going to derive the equation for current which is going to flow in this circuit, and then later on we are going to draw the phasor diagram for this circuit, and then uh, we will derive the equation for instantaneous power, and then later on we will derive the equation for average power dissipated across the capacitor. Okay, so first of all we are assuming here that the external voltage that we are applying here, it is V of t equals to V naught sine omega t. Okay, where V naught is amplitude of the given voltage function. Okay, here V naught is maximum, or sometime it is called as peak voltage. And what is omega here? Omega is angular frequency. Okay. So now, first of all, we will apply here the Kirchhoff's voltage loop rule, and then after all, the when we will apply the Kirchhoff loop rule, we will get the equation for current. Okay. So we will apply the when we apply the Kirchhoff law, then what we will get? Let me write. Apply Kirchhoff's loop rule. What we will get? The external voltage is V, so that's why it will be minus of V plus of Vc equals to 0. Vc is the voltage across capacitor. Now it will be equals to V equals to Vc, and we will get, as we know that V is V naught sine omega t. And for a capacitor, what is voltage across it? In terms of charge and capacitance, we can write here Vc equals to Q by C, because the charge will be equals to charge Q equals to V into C, that we all know. So the similar concept we are going to apply here. So the equation will be formed as Q by C. Now we want to find out here the expression of current. So the equation in terms of charge, it will be Q equals to V naught into C sine omega t. This will be the equation. Now for finding out the current, we have to differentiate it with respect to time, because the time derivative of charge is current. So now what will be the current? It okay. So here the current will be I equals to dq over dt, and we will get the current I equals to d over dt, and it is applied over v naught c times sine omega t. As we can see that in this equation, V naught and C are constant, so we can take them out. इक्वेशन क्या बनेगा अपने पास? V naught into C, और जो डिफरेंशिएशन है d over dt, वो किस पे रहेगा? ओनली साइन ओमेगा टी पे रहेगा. ओके, सो अब साइन ओमेगा टी को डिफरेंशिएट जब हम करेंगे तो अपने पास क्या इक्वेशन आएगा? V naught into C, और फर्स्ट ऑफ ऑल साइन ओमेगा टी का करेंगे तो अपने पास आएगा कोस ओमेगा टी, और फिर ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा? ओमेगा आ जाएगा. अब इक्वेशन क्या बनेगा? वी नोट आई इक्वल्स टू वी नोट इंटू
ओमेगा इंटू सी और कोसाइन ओमेगा टी। ठीक है, ये अपने पास इक्वेशन बन जाएगा करंट का। अब एक चीज, हमें वापस से वही करंट को अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करने के लिए हमें वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको रीअरेंज करेंगे तब तो अपने पास इक्वेशन आएगा आई इक्वल्स टू वी नोट अपॉन, वी कैन राइट इट वन अपॉन ओमेगा सी, क्योंकि वन अपॉन ओमेगा सी है। जब इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास वही इक्वेशन आना है कि वी नोट इंटू ओमेगा सी। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। नाउ कोस ओमेगा टी को कोस ओमेगा टी रहने देते हैं। अब जो अपने पास वन अपॉन ओमेगा सी है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? वी कैन राइट हियर, हियर एक्स सी इक्वल्स टू वन अपॉन ओमेगा सी। और इसको क्या बोलेंगे हम लोग? कैपेसिटिव, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इसको बोलेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? ओम्स। एंड इट्स एस आई यूनिट इज ओम्स, क्योंकि एक तरीके से ये भी रेजिस्टेंस का ही काम करेगा। तो अपनी इक्वेशन क्या बन जाएगी करंट की? द इक्वेशन ऑफ करंट विल बी आई इक्वल्स टू वी नोट डिवाइडेड बाई एक्स सी कोस ओमेगा टी। ठीक है, अब हम वी नोट अपॉन एक्स सी है, ये कांस्टेंट वैल्यू है। इसको हम एक अनदर कांस्टेंट बोल सकते हैं आई नोट। और आई नोट यहाँ पे क्या है? आई नोट इज वी नोट डिवाइडेड बाई एक्स सी। और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? मैक्सिमम, या फिर बोल सकते हो आप पीक वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, अब हमें इसमें फेज डिफरेंस निकालना है। तो फेज डिफरेंस के लिए हमें दोनों फंक्शंस को एक ही मतलब साइनोसॉइडल फंक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमारे पास जो वोल्टेज है, एक्सटर्नल वोल्टेज, वो साइन ओमेगा टी है, यानी कि साइन का फंक्शन है। तो हमें करंट को भी साइन में चेंज करना पड़ेगा। तो कैसे कर सकते हैं? वी कैन राइट कोस ओमेगा टी, कोस ओमेगा टी इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। जब आप साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू करोगे तो आपके पास सिमिलर फंक्शन बनेगा कोस ओमेगा टी। तो वी कैन रिप्लेस इट विद दैट। सो द इक्वेशन ऑफ करंट विल बी आई इक्वल्स टू आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। So equation of current will be I equals to I naught sine omega t plus pi by 2. What does it mean? It simply means that uh, the voltage is pi by 2. Like the voltage is pi by 2 radian, uh, pi by 2 radians behind the current. Or we can say the current is leading by pi by 2 radian from the voltage. So there are two conclusions. So let me write here phase difference। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों को लिखेंगे। हम पहले वोल्टेज को लिखेंगे। तो वोल्टेज क्या होगा? V इक्वल्स टू वी नोट साइन ओमेगा टी है। ठीक है, और करंट अपने पास क्या है? करंट I इक्वल्स टू आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। By just looking at these two functions, voltage function and the current function, we can say that phase difference is
phi equals to pi by 2 रेडियंस। और आप इसको ये भी बोल सकते हैं कि 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है। और इसमें भी दो तरीके से बता सकते हैं आप इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन से दैट करंट लीड्स द वोल्टेज बाय पाई बाय 2 रेडियंस। और सेकंड पार्ट में आप क्या बोल सकते हैं कि द वोल्टेज lags behind the current बाई पाई बाय 2 रेडियंस। दोनों करेक्ट होंगे। अच्छा, एक चीज और है यहाँ पे, जो हमने यहाँ पे जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस लिखा है उसका भी ग्राफ बना के देख लेते हैं कि हाउ द कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड ओमेगा वर्सेस ग्राफ लुक लाइक। सो एक्सी अपने पास क्या है, एक्सी इज 1 ओमेगा सी। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है कि ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द गिवन वोल्टेज। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सिंस इट इज वेल डिफाइंड फंक्शन ओमेगा एक्स सी इक्वल्स टू 1/ओमेगा सी, तो यहाँ से आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो कि एक्स सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। और यहाँ से अपने पास ग्राफ आएगा एक्स एक्सिस एंड द वर्टिकल एक्सिस इज वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे आप ओमेगा ले लीजिए, ठीक है। और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, रेडियन पर सेकेंड। और वाई एक्सिस पे आप लीजिए एक्स एक्स सी, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ओम्स। तो ग्राफ क्या बनेगा इसका, ग्राफ विल बी, since it is a inversely proportional, so graph will look like this. Okay, now we will draw the we can say the graph between the current and voltage, and then we will draw the graph for phasor diagrams. So collectively write them as phasor diagrams. Phasor phasor diagrams. Let's see how their graph looks like. Another coordinate axis for individual graphs. Vertical axis, then horizontal axis, it will be okay. Now we can make the graphs. Since we know that voltage is the similar function as we were drawing for the previous circuits, so it will be similar. It is V equals to V naught sine omega t. So it is a simple sine graph. So let's make it.
1 second. ओके, सो ग्राफ विल लुक लाइक दिस वन। तो यहाँ पे जो एंगल है, एंगल को क्या लिख सकते हो आप लोग? ये एंगल हो जाएगा यहाँ पे, दिस वन इज π/2, एंड ये कितना हो जाएगा? π रेडियन। और ये कितना हो जाएगा? 2π रेडियन। और द ग्राफ विल गो ऑन। अब ये हो गया किसका? वोल्टेज का ग्राफ। ठीक है, जिसमें ये जो वैल्यू है, दिस विल बी V0। अब एक ग्राफ बनाते हैं करंट का ग्राफ। करंट का ग्राफ कैसे बनेगा यहाँ पे? as we can see that the equation of current is I equals to I naught sin omega t plus π/2। तो सिमिलर साइन का फंक्शन है, बट फेज है इसमें π/2 का। तो ये कैसे कोसाइन की तरह एक्ट करेगा, एंड इसका जो एम्पलीट्यूड है वो होगा लेस देन वोल्टेज। तो वो भी हमें ध्यान में रखना है। ओके, अब इसको स्टार्ट करते हैं। इट विल स्टार्ट फ्रॉम इट्स पीक वैल्यू। So let us start it. Okay, 1 second. So we can start from here. So graph will look like, okay, so graph will look like this one, and it will depict the graph for current. Now what we are going to see that what is the phasor diagram of it. So let's draw it again for phasors also. So for phasor it will be, first of all we'll make the graph for current. Current or voltage? We will make it for voltage. So this is voltage V, and let's denote it here. That what is denoted? It is current I, and here it is voltage V. Fine. So we can match it with the individual graphs. और अब हम बनाते हैं करंट का ग्राफ। करंट का ग्राफ किस तरफ बनेगा? क्योंकि π/2 का फेज है, तो वो इससे आगे होगा, लीड कर रही है करंट इसमें। ये हो गया वोल्टेज का। अब करंट का बनाएंगे तो करंट विल बी, ये हो जाएगा अपने पास करंट का ग्राफ। और ये भी ध्यान रखना है क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड होगा वो लेस देन होगा वोल्टेज से, दोनों चीज ऐसे बनाना है। तो ये हो जाएगा अपने पास करंट आई। और इनका इक्वेशंस भी आप लिख सकते हैं। अपने पास जो एंगल है, दिस एंगल विल बी ω t1। और ये जो एंगल है वो कितना है? π/2 है। ठीक है, अब इसमें इक्वेशन क्या हो जाएगा? करंट का इक्वेशन ऑफ करंट आई, इट विल बी I0 साइन ω t प्लस π/2। और वोल्टेज का क्या हो जाएगा? V0 साइन ω t। तो ये हो जाएगा इसका फेजर डायग्राम। अब बात आती है इंस्टेंटेनियस पावर की। तो इंस्टेंटेनियस पावर कैसे फाइंड आउट करेंगे? इंस्टेंटेनियस पावर, इंस्टेंटेनियस पावर क्या हो जाएगा? P इक्वल्स टू वी आई, सिमिलर फंक्शन, P इक्वल्स टू वी आई। अब इक्वेशंस रख देते हैं इनकी। तो क्या आएगा? P इक्वल्स टू V0
साइन ओमेगा टी, और करंट का क्या है अपने पास, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। पी इक्वल्स टू अपने पास क्या आ जाएगा, वी नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी, और साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू को हम लोग लिख सकते हैं कोस ओमेगा टी। ठीक है। अब वी नोट आई नोट डिवाइडेड बाय टू, और साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी है, इसको लिख सकते हैं साइन ऑफ टू ओमेगा टी। ठीक है, क्योंकि टू साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी क्या होता है, साइन टू ओमेगा टी। तो ये हो जाएगा अपने पास इंस्टंटेनियस पावर का इक्वेशन। नाउ आवर टास्क इज टू फाइंड आउट एवरेज पावर। तो एवरेज पावर क्या हो जाएगा, एवरेज पावर ओवर वन कंप्लीट साइकिल। ठीक है, तो एवरेज पावर विल बी, we have to take average both of the sides, so it will be v naught I naught divided by 2 sin 2 omega t and its average। तो अपने पास इक्वेशन आएगा एवरेज ऑफ पावर p इक्वल्स टू v naught I naught डिवाइडेड बाय 2। ये तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा अपने पास, और बचेगा क्या, एवरेज ऑन साइन 2 ओमेगा टी। तो ये साइन 2 ओमेगा टी का एवरेज क्या होता है, एज वी नो दैट इट इज जीरो, so it will be v naught I naught divided by 2 into 0, so average power will be 0 वोल्ट्स। जब अपने पास 0 वोल्ट पावर आ गई है, तो इसको दैट्स वाई द करंट इज कॉल्ड एज वोल्टलेस करंट। वोल्टलेस वोल्टलेस करंट। So that's all about the when an AC voltage is applied to capacitor. I hope you understood. If you still have any doubt, then you can ask in the comment section. I'll be clarified there.